Honorable Union Home Minister and National President of Bharatiya Janata Party, Sri Amit Shah Ji, Honorable Chief Minister of Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal, Manipur, Meghalaya, Sikkim and Tripura, Honorable Union Minister of State sitting on the dais, Honorable Minister of Finance, Government of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma and Convener of NEDA, Honorable Deputy Chief Ministers, all the respected President and leaders of all political parties present here, all the Honorable Ministers from Northeastern states, all the Honorable MPs of Northeast states, all the Honorable MLAs, other dignitaries, ladies and gentlemen, and my friends from media. On behalf of AGP, I would like to welcome Amit Shah Ji to the fourth conclave of NEDA. Sir, thank you very much for coming and inspiring all of us with your gracious presence. We are very much pleased to be here again. We have been going hand in hand since 2016. Formation of NEDA was a great initiative under your visionary leadership. And not only Assam, but Northeastern region as a whole has been immensely benefited by this initiation. In this regard, I would like to point out to Act East policy. Earlier, the UPA government had taken Look East policy, which has been replaced by NDA government, Act East policy. And there is no doubt that Act East policy is much more practical and beneficial than the Look East policy. As a result of this, our Northeastern region has become a hub of Southeast Asia in many aspects. Sir, I am also holding the portfolio of the Agriculture Department along with other portfolios of our government at present. I would like to mention some points about agricultural sector. We are very much thankful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for his deep thinking and exceptional initiative for the development of the agricultural sector of our country, along with other states. Honorable Prime Minister has fixed the target of doubling farmers' income by the year 2022. And to achieve the target, our department is putting endless effort to achieve the target. And I assure you, sir, we will fulfill the dream of the Honorable Prime Minister by the year 2022. In this regard, our department started implementation of various schemes like PM Kisan, PM KSY, Soil Health Card, Prime Minister Fasal Bima Yojana, etc. In this regard, Honorable CM has also taken initiative. I would like to inform you that Assam has already secured third position in the country in implementation of PM Kisan. Another dream of our Honorable Prime Minister is to make Assam and Northeast as the organic hub of our country. In this regard also, we have taken some important steps under able guidance of our Honorable Chief Minister. Sir, another important issue that is updation of NRC. Final rule of NRC has already been published. 31st August 2019. Updation process was going on under monitoring of Honorable Supreme Court. But we are not satisfied at all. And we have already expressed our dissatisfaction publicly, and we are demanding re-verification. We want a correct NRC deleting the names of the illegal immigrants and including the names of the genuine Indian citizens. We are feeling happy that under your leadership, the Union Home Ministry is taking some important steps to implement the clauses of the historic Assam Accord. We are quite hopeful that it will be a successful process and the people of Assam will get some positive result.
and we are very happy that you have taken the charge of the chairman of NEC. We hope under your able leadership, NEC will play a pivotal role for the overall development of this region. Our Honorable Chief Minister has also been contributing his valuable service for the overall development of the state of Assam. Another aspect I must mention here is that the role of NEDA in uniting various political parties under one umbrella. We must appreciate Dr. Himanta Biswa Sarma ji and his sincere, tireless efforts in making NEDA a successful platform. We had an important meeting with Amit Shah ji yesterday. That was a short meeting. And, sir, your clear stand on the illegal immigrant issue is extremely bold and very clear, which I am sure has brought great relief to the people of Assam, because we have been looking for a permanent solution on this issue for the last 4 decades. हमें स्टूडेंट देश से अभी तक जितना सारा पॉलिटिकल लीडर मिला, but अमित शाह जी समथिंग एक्सेप्शनल. बात कम बोलते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट देते हैं, ये कमिटमेंट ऑनर करते हैं. So we are thankful to him. हमारे बहुत आशा है कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सारा कुछ काम under his visionary leadership जरूर होगा. With these few words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you, sir. May we now humbly request the Honorable Chairperson of BPF, Shri Hagrama Mohilari, to kindly share his views. Honorable President of All India BJP Party, और Union Home Minister, Government of India, Sri Amit Shah ji, और NEDA के कन्वेनर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी, और यहाँ में उपस्थित नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट का सभी सम्मानियों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सभी पार्टी का एमपी और एमएलए और नॉर्थ ईस्ट का सभी पार्टी का रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट. मैं असम का हूँ, असम का बात बोलेंगे. सर, असम में इस साल बहुत बड़ा फ्लड हो गया, सबको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट कार्ड में सभी मालूम है. इसीलिए मेरा कहना यह है कि असम में जितना क्षति हुआ फ्लड से, उसको मिटाने के लिए एटलीस्ट 1 लाख करोड़ देने से उसको मिटा पाएंगे. नहीं, स्पेशली असम के लिए 1 लाख करोड़ देने से इस साल में जितना बाढ़ पानी से नुकसान हुआ उसको मिटा पाएंगे हम. ये 1 नंबर. 3 मिनट या 3 पॉइंट बात बोलेंगे, वो तो 1 चला गया. 2 नंबर है ये असम में या नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंसर्जेंसी है, सबको मालूम. अल्फा है, NSN है, बहुत है. और यहाँ में हमारा बोडो इलाका में NDA भी है. मैंने सोचा हमने ट्राई कर रहा है बोडो कल्चर में जो बोरो समाज में जो गान कल्चर है उसको समाप्त करने के लिए हमने ट्राई कर रहा है. NDA बेस से बात कर रहा है. और उस दिन हमने चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी से भी बात किया. तो NDA का समस्या को समाधान करने के लिए सरकार का सहयोग चाहिए. और NDA प्रोग्रेसिव धीरेन बोरो प्रेसिडेंट, इसका लीडरशिप में जो बात हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी
एक्सपर्टेट करना है और उसको समाधान करके देना है। और जंगल में जो लोग हैं अभी तो होम डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने से हम बात करके उन लोग को भी ला पाएंगे, मेरा विश्वास है। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया, आप हमको अनुमति दीजिए। जंगल में अभी तक जो लोग एनडीपी है उन लोग को भी बात करके हम लाएंगे और जल्दी से जल्दी एनडीपी का समस्या समाधान हो जाए। और 3 नंबर है ये हमारा असम में कार्बी तिवा ऑटोनॉमस काउंसिल है, मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल है और राभा ऑटोनॉमस काउंसिल है। वो लोग बीटीसी का जैसा 6 शेड्यूल में अपग्रेड करना चाहता है, उसको अपग्रेड करना है। और बीपीएफ बीजेपी से ही रहेंगे। हमारा बीटीसी में बोडोलैंड का जो इलेक्शन है बीटीसी में 2020 का अप्रैल महीना में होगा। इस इलेक्शन में हम एजीपी, बीजेपी और बीपीएफ एक साथ लड़ेंगे, गवर्नमेंट हम ही बनाएंगे। और सर 2021 में भी एमएलए इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ में असम में, आराम से बीजेपी सरकार बनाएंगे, आराम से, चिंता मत कीजिए उसको। और दिल्ली में भी बीजेपी का सरकार, एनडीए सरकार 20 साल तक रहेंगे। इसके बाद में क्या होगा मालूम नहीं। 20 साल आराम से एनडीए सरकार 20 साल रहेंगे, एनडीए सरकार रहेंगे। और असम में भी हमारा सर्बानंद जी ने चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बस होगा ही, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। चेंज करना नहीं चाहिए सर, सर्बानंद जी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना है। चेंज करना नहीं चाहिए, वही रहना है। हाँ ठीक है। तो मेरा बोलना ये 3 बात बोल दिया, उसी को हमारा अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको ही बोल के मेरा भाषण यहाँ समाप्त कर दिया। थैंक यू। Thank you, sir. May we now humbly invite the Honorable Donor Minister, Government of India, Dr. Jitendra Singh Ji, to kindly deliver his speech. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत के तेजस्वी गृह मंत्री, जिनका लोहा आज न सिर्फ कश्मीर बल्कि संसार भर मानता है और जिनके डंके की चोट से पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे परम आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी। डोनर मंत्रालय की बातें काफ़ी हो चुकी। कल नेडा का कार्यक्रम है, केवल संगठन और व्यक्तिगत कुछ बात रख कर के बात समाप्त करूंगा। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का कार्यकर्ता हूं और जम्मू कश्मीर के भी एक ऐसे क्षेत्र का कि मेरे गांव में आज भी सड़क की पूरी सुविधा नहीं, रेलगाड़ी तो देखने से पहले ही बहुत से लोग इस संसार से कूच कर जाते हैं। और इसलिए मेरा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, अधिकार भी है कि मैं विशेषकर अभिनंदन करूं श्री अमित भाई शाह का, प्रधानमंत्री मोदी जी का अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को रिवोक करने का, एब्रोगेट करने का। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि इस पूरे सभागृह में जितने भी मित्र बैठे हैं उनमें से कोई भी उस बात को समझ नहीं सकता, उसका एहसास नहीं कर सकता what it means for me to revoke Article 370। संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते लड़कपन से, बचपन से हमें ये प्रशिक्षण दिया जाता था कि आपने अपने आप को ट्रेन करना है आंदोलन करने के लिए, धरने लगाने के लिए, दरियां बिछाने के लिए, पुलिस की लाठी से अपने आप को किस प्रकार बचाना है, ये कला सीखनी है। रोज लाठी चार्ज होगा,
पोस्टर जब लगाएंगे कार्यक्रम के लिए तो सुबह जाकर के फिर से देखना है कहीं किसी ने फटवा तो नहीं दिया, प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। उस प्रकार की परिस्थितियों में हम कार्य कर रहे थे। और ज्यों ज्यों होश संभाला तो ये सिखाया गया कि भेदभाव भी होगा, आपके पास क्षेत्रीय भेदभाव होगा, वर्ग के स्तर पर भेदभाव होगा, लेकिन आपको आनंद रहेगा संघर्ष करने में। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं मेडिकल कॉलेज गया मेरिट पर, तो वहां पहुंचते ही मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री का एक और पत्र आया है, आपकी एडमिशन नहीं होगी, एडमिशन दूसरे कैंडिडेट की होगी। क्योंकि ये उन दिनों सीटें प्रदेशों में बांटी जाती थी, भले ही मेरिट था। तो मुझे याद है मद्रास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है चेतपट में, तो माननीय सुकुमार जी जो अब कुछ वर्ष पहले चल बसे, वो हमारे गार्डियन भी थे। तो मुझे कहने लगे कि आप चले जाओ, अगले वर्ष फिर आना। तो मैंने कहा भाई साहब मैं जा नहीं सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि मैं अपने गांव में पहला बालक था जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था, और मेरे पिताजी ने कहीं से कहा के रेडियो में खबर भी लगवा दी कि दूर दराज पहाड़ी गांव का एक बालक मेडिकल कॉलेज, मैं तो अब यहीं रहूँगा। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस दूसरे कैंडिडेट को भी एडजस्ट किया गया। इस प्रकार की वेदना से हम निकले हैं, और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ, और इसलिए कहने का साहस कर रहा हूँ कि यदि अमित भाई शाह पहले आए होते, यदि मोदी जी पहले आए होते, तो मेरे जैसे अनेकों अन्य कार्यकर्ताओं की जीवन की कथा अलग होती, बचपन की कहानी अलग होती, जवानी की गाथा अलग होती। और जब संगठन का कार्य करते करते हमें केवल ये सिखाया जाता कि 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया, अब आपने भी ये करना, और इसी में आनंद था। हमें कहानी सुनाई जाती कि हमारे अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा को मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मंत्री बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बन तो जाऊंगा लेकिन लोगों के साथ धोखा होगा, और इसलिए जीवन भर संघर्ष करते करते चल बसे। एक समय में मुझे भी उस समय के मुख्यमंत्री ने संदेश भेजा, जो अभी भी वयोवृद्ध जीवित हैं। बोले इस लड़के को समझाइए, कहाँ इन ऐसी पार्टियों के चक्कर में पड़ा है, और ऐसे संगठन में ना सरकार केंद्र में ना प्रदेश में बनेगी, यहाँ आएगा तो कुछ दे देंगे। इत्तेफाक से मैं अपनी क्लिनिक में बैठा था, तो मैंने उन भाई साहब को कहा अगर आप बाहर जो वेटिंग में लोग बैठे हैं उनके जेब देखिए तो कुछ एक ऐसे होंगे जिनके कार्ड में लिखा होगा फॉर्मर मिनिस्टर, उनसे तो मैं बेहतर हूं। इस प्रकार का आत्मविश्वास लेकर के 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता ने और भारतवर्ष के कार्यकर्ता ने संघर्ष किया, उसके प्रायश्चित की घड़ी हमें देखने को मिली। हमें हालांकि विश्वास नहीं था, हम चौथी पीढ़ी में, इसके लिए हम ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे सदा 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 के लिए मोदी जी के, अमित भाई शाह जी के। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की कहानियां सुनते सुनते हम परवान चढ़े। आज इत्तेफाक से मेरे ही क्षेत्र में है वो स्थान जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा था, उनके सेक्रेटरी थे उस समय युवा अटल बिहारी वाजपेयी, कि अटल गो एंड टेल दी वर्ल्ड मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। मैंने उस दिन सदन में भी कहा था, यदि आज मुखर्जी जीवित होते तो कहते गो एंड टेल दी वर्ल्ड मोदी एंड अमित शाह हैव रिवोक्ड आर्टिकल 370। और एक सुखद संजोग के बाद में मुझे आपने प्रभार दिया पूर्वोत्तर का। जब मैं पूर्वोत्तर में आया नॉर्थ ईस्ट, तो सच मानिए मैंने पहली बार, मुझे कोई इसका अनुभव नहीं था। मैं गुवाहाटी स्वेटर और कोट पहन करके आया। सुना था ब्रह्मपुत्रा विश्व का सबसे बड़ा दरिया है, मैंने सोचा ना मालूम कितनी ठंड होती होगी वहां। लेकिन जिस प्रकार यहां से स्नेह मिला, प्रेम मिला, और जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, ऐसे ऐसे प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जहां कभी लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, मेरे अपने गांव में भी ऐसा ही था। बहुत से लोग चल बसे बिना रेलगाड़ी के दर्शन किए। मैंने रेलगाड़ी देखी जब मैं कॉलेज में पहुंचा, हेलीकॉप्टर देखा जब मैं केंद्र में मंत्री बना। उस प्रकार का हमारा बैकग्राउंड था। मुझे लगा कि परमात्मा ने मुझे मौका दिया अपने बचपन के, अपने जवानी के सपने अधूरे पूरे करने का और उसका प्रायश्चित करने का। लेकिन ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी ने ये प्रभार दिया, अमित भाई शाह जी ने ये प्रभार दिया।
और आज इसलिए बहुत अधिक सरकारी बातें ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूँगा अंत में कि पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत की इस विकास यात्रा में नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, अभिन्न हिस्सा रहेगा। और जब मोदी जी के न्यू इंडिया का नक्शा बनेगा, द मोस्ट विजिबल टेरिटरी वुड बी दैट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable words. May we now humbly request the Honorable Chief Minister of Assam, Shri